बात पे इस्लामाबाद। यार आज हमने RH इनकम्पैटिबिलिटी डिस्कस करनी है। पहला केस तो बड़ा ही आसान सा है। चले शुरू करूं। यस सर। A patient age 20, gravid 2, para 0+1, had यस सर। 20 weeks of gestation. सर कितने वीक्स ऑफ जेस्टेशन? हाँ जी 20 weeks. यस सर। आपके क्लिनिक में आई है for booking and she tells you her blood group is A negative. ओके सर। दोहरा दूंगे काफी है। Sir, 20 years old, gravida 2, para 0+1, at 20 weeks, came for antenatal booking. Her blood group is A negative. गुड, चलिए सर स्टार्ट करूं? बिल्कुल बिल्कुल टाइम होगा। Yes sir. Sir, after mutual introduction and confirmation of the information provided to me, I will ask my patient about her last menstrual period and regularity of the cycle, and then I will ask her about um, her last miscarriage, that at what gestation she had miscarriage, and whether that pregnancy was spontaneous, whether it was spontaneous miscarriage or any surgical or medical intervention done, and whether she has received any does she has any history of receiving anti-D, and regarding this pregnancy, any bleeding episode during this pregnancy, and whether she has booked her pregnancy and any complication or any problem up till now during this pregnancy. Then I will ask her about any medical, surgical, drug or socioeconomic history. Then I will proceed to her examination, in which I will check her BMI, her vitals, and BMI, her vitals, thyroid examination, and breast, chest, respiratory, and abdominal examination to look for symphysiofundal height and its correlation with the gestational age. And I will check for the fetal hearts by using the sonicate. Then I will proceed for the investigations, in which I will go for the baseline investigations. And as my patient is RH negative, so I would like to ask her whether her husband blood group has been done or not, and what is the blood group of the husband, and if it is positive, I will go for the genotyping of the husband, whether done or not. Then I will ask about her RH antibody titer, if done. And among imaging studies, I would like to have her dating scan at 12 weeks, and whether her anomaly scan has been done or not. गुड, वेरी गुड, चलते जाइए। And then, sir, depending on my further management of the patient will depend upon the her investigation reports. गुड, Sir, I will counsel my patient. I will counsel my patient regarding her pregnancy. That if her husband is positive, then I will tell my patient that she needs monitoring during her pregnancy, and that monitoring includes serial determination of RH antibody titers, and the frequency will be up till 28 weeks. We will do her RH antibody titers 4 weekly, and after 28 weeks, we will do her antibody titers 2 weekly, and also and her further management depends upon the antibody titer.
if at 28 weeks, we will give her prophylactic anti-D, and one dose at 28 weeks and the other dose at 34 weeks. If our pregnancy remains uncomplicated, then my aim will be to take her pregnancy as close to term as possible, and at her term, I would like to do her bishop score and will deliver her accordingly. गुड, चलते जाइए। अभी आपके पास Once the baby is delivered, I would like to check for the baby blood group, and if the blood group is positive, then the mother will receive anti-D injection and anti-D injection. आपके नंबर है 5, पास नहीं है। कितनी खूबसूरत आपने सारा बयान दिया और एंड टाइम पे विदिन 7 मिनट्स खत्म किया, और मोस्ट ऑफ द सेलिएंट फीचर्स आपने कवर किए, लेकिन पास नहीं है। आपके नंबर है 5। सोच के जरा बताइए, वेयर डिड यू मिस और गो रॉन्ग, और क्या हुआ, क्यों नहीं पास? सर समझ नहीं आई कि क्यों नहीं हूँ। यही सर होता है। बेबी ब्लड ग्रुप नहीं पूछा, और वो और सर जो नियोनेटोलॉजिस्ट, ब्लड ग्रुप कहा है इन्होंने, कहा सर एंड में जो है ना वो सर एंटी नियोनेटोलॉजिस्ट, सर नियोनेटोलॉजिस्ट शुड बी प्रेजेंट। उसमें उल्फत बोल रही है, बोले क्या कह रही हैं? Sir, neonatologist should be present, and there is and direct comb test should be do, and cord blood sampling and handling to the placenta. मिडिल सेरिब्रल आर्टरी भी नहीं करवाई और एंटीबॉडी Oh. टाइटर Sir, भी नहीं recurrence in the next pregnancy and the contraception. चलो 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 चलो, गुड। ये उल्फत ने एक पॉइंट तो आइडेंटिफाई कर लिया कि तस्मिया ने ये नहीं कहा कॉर्ड ब्लड लेके कौन से 4 टेस्ट करूंगी। So cord blood, we will check for the hemoglobin, blood हाँ, group of the baby, and bilirubin levels. and Sir, hematocrit Hematocrit. or direct Coombs test. Sir, direct Coombs test. डायरेक्ट जी, आपने ये नहीं बोला था। चलो, आप देखा ना, आप पाता था नहीं बोला, फिर भी आपके नंबर हो गए 5+, 6 नहीं है। सर 28 वीक पे वो मॉनिटरिंग नहीं हुई ना, मतलब कि ना एंटीबॉडी टाइटर। नहीं, इन्होंने कहा पहले 4 हफ्ते। और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी टू रूल आउट फीटल एनीमिया के लिए वो चले, मैं तो अगर इन्होंने जोर दिया एंटीबॉडीज पे कि हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, आर्टरी की करने की कोई इतनी जरूरत नहीं है। फिर भी मैनेजमेंट में मिस्टेक होगी, मैनेजमेंट में मिस्टेक। सर एनटीडी एंड में जो है ना डिलीवरी पे इसने एनटीडी दी है, वो नहीं देनी चाहिए क्योंकि सेंसिटाइज है पेशेंट। नहीं, अब आप ऐसी मार रहे हो। नहीं, मैं बता देता हूँ। शी डिड वेरी वेल। मैं इसको फेल नहीं किया था, मैंने बॉर्डर लाइन रखा था, बिकॉज शी डिड वेरी वेल। देखे, इस केस में कुंडी है जिस पे पास फेल होना है कि आपने हिस्ट्री पे गौर नहीं फरमाया। वो हिस्ट्री ये है कि इसका एक मिसकैरेज हुआ, आपने कह दिया कि मैं पता करूंगी उसको एंटीडी लगा के नहीं लगा, आपने ये कह दिया। यू वर वेरी क्लोज, हाँ जी। डीएनसी हुई थी या नहीं हुई थी सर? इंस्ट्रूमेंटल जी, आपने एंटीडी कहा, मैंने मान लिया, बहुत अच्छा किया, इसीलिए आप बॉर्डर लाइन पे हैं, फेल नहीं है। तो लेकिन साथ आपको ये कहना था
because she had one miscarriage and possible के एंटीडी लगा के नहीं लगा, मैं इस वक्त उसकी एंटीबॉडीज टेस्ट करूंगी। इनडायरेक्ट कूम्स के टेस्ट उस वक्त करना था। ये थी कुंडी इसमें कि सर जो 20 पेशेंट वीक्स पे लेविडा 2 है, ये कोई माइक अपना बंद कर दे। जो लेविडा 2 है, अगर वो उसको पास प्रेगनेंसी हुई, RH इनकम्पेटिबिलिटी ने, आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि जब वो पिछली प्रेगनेंसी खत्म हुई, चाहे अबॉर्शन हुई, चाहे डिलीवरी हुई, चाहे क्या हुआ, लेकिन उसके बाद आपने बिल्कुल सही पूछा कि उसको एंटीडी लगा या नहीं लगा। ठीक यस कहा। सर, यस सर, लेकिन साथ उसके ये कहिए अब बुकिंग के लिए आइए, बुकिंग डे पे मैं उसकी एंटीबॉडी का टेस्ट करूंगी, जी इनडायरेक्ट सर, और उसके बाद फिर आगे चलना है। उसके बाद आगे चलना है जो आप चली, और तकरीबन जनरली आप ठीक है। एक पॉइंट ये मिस। ओके सर, दूसरा पॉइंट, आपने ये जरूर फरमा दिया कि मैं हस्बैंड का ब्लड ग्रुप करूंगी, और अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी जीनोटाइपिंग कराऊंगी। ये आपने फरमाया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उसको फर्दर भी डायरेक्ट करना था आपने कि अगर उसकी जीनोटाइपिंग डी, लार्ज डी, स्मॉल डी है, फिर क्या पॉसिबिलिटी है? अगर लार्ज डी है तो क्या पॉसिबिलिटी? ये sir, एक if फिक्रा the को husband is, yes sir, if the husband is homozygous, then there are 100% chances of RH positive baby in every pregnancy. But if the husband is heterozygous, then there are 50% chances of RH positive ये baby. अल्फाज बोलने थे आपने। अब मैं देखा ना, आपको आता होता है, लेकिन कंसंट्रेट ऑन द डेटा प्रेजेंटेड टू यू। इस आज के डेटा में जिसको कुंडी कहते हैं ना, Yes कुंडी sir, ये थी कि शी इज पैरा 0+1, yes sir, 0+1। वो हस्बैंड का, ये तो सब बोलेंगे कि उसका जीनोटाइपिंग करवाएंगे। थोड़ा सा उसको एक फिक्रा और ऐड कीजिए कि possibility of sensitization depends capital D homozygous, capital D small d heterozygous, बस फिर yes आप sir, पास, फिर कंफर्टेबली पास। चले, जी वेरी गुड तस्मिया फ्रॉम इस्लामाबाद। कौन से अस्पताल में हो आप? मैं पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल। पॉलीक्लिनिक। चल, बस देखा, आपको सारा कुछ आता था, आपने प्रेजेंट भी बहुत अच्छा किया, विद इन टाइम किया, 7 मिनट के अंदर अंदर खत्म भी किया आपने। तो आपने 3 चीजें मिस की। एक, यस सर, 0+1 आपने यस सर, बोला कि उसको एंटीडी लगा के नहीं है, उसको थोड़ा आगे डायलेट करना था। यस सर, अगर लगा भी है फिर भी मैं उसके इनडायरेक्ट RH एंटीबॉडी टाइप। यस सर, ऑन द बुकिंग डे। जी सर, और दूसरा जो आपने बोला कि आपको हस्बैंड की जाइगोसिटी को जरा डायलेट करना था, जी सर। और और तीसरा सर थर्ड, कॉर्ड कॉर्ड ब्लड, बेबी कॉर्ड टेस्ट ब्लड बोले नहीं फोर आपने, टेस्ट। दोबारा आया तो बोले। जी सर, तो इसलिए ये तीनों पॉइंट आपको आते थे, लेकिन इन तीनों को ऐड कीजिए, कोई 30 सेकंड और बनते हैं। यस सर, because she had one miscarriage, and even if she had NTD, I'll check her indirect womb test at booking. ओके सर, ये 15 सेकंड हो गए। फिर दूसरा हमने जो भी था कॉर्ड ब्लड के, I'll do 4 टेस्ट। 4 टेस्ट कह दिए तो वो भी काफी है, अगर नाम बोल दें तो और भी अच्छा हो जाएगा। और दूसरा जाइगोसिटी, वेरी गुड, माशाल्लाह, वी आर गेटिंग बेटर। तस्मीया, तुमने पहले भी प्रेजेंट किया हुआ कोई? नो सर, मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है आपके साथ। चलो, वेरी गुड, माशाल्लाह। चलो जी,
अगला कैंडिडेट है उल्फत। Yes, sir. आप कहाँ से बोल रही हैं उल्फत? Sir, from Hyderabad. हाफिजाबाद? Sir, Hyderabad. हैदराबाद? तो वो वहाँ तो मैडम पे मैडम है, मैडम आफ्ताब मुनीर, मैडम मेमन, मेमन क्या, मैंने पिछली दफा उनको सलाम भी भेजा। श्री चंद, क्या पहला नाम उनका क्या है मैडम का? Sir, Pushpa Sirichan. हाँ, पुष्पा। पुष्पा, देखो बूढ़ा हो गया हूँ। चलो अगले कैंडिडेट उल्फत, आसान है तुम्हारा केस। पेशेंट 24-year-old primary gravida at 12 weeks of gestation appears with the bleeding and pain lower abdomen and her blood group is A negative. इससे ज्यादा आसान तो नहीं हो सकता। जी फरमा दीजिए उल्फत। First of all, I will introduce myself to the patient and take the brief introduction from the patient and reconfirm the finding given to me. I will ask the patient regarding the menstrual cycle, duration of the marriage and the last menstrual cycle, and I will ask the patient, is the PV bleeding is spontaneous, or there is any aggravating factor, and I will also ask the patient amount of the PV bleeding, color and duration, and the how much pad is changed, and the associated pain is severity of the pain, is there is the pain is aggravating, and factor of the pain is she took any medication to solve this problem. I will also ask the patient, I will also ask the patient, if there is any medication taking or not, is there any significant previous past medical history and the past surgical history, and any smoking history, allergic history, and socioeconomic status of the patient. And I will also ask the patient, is she took the anti-D for this reason or not. And then I will go toward the baseline management and the blood group of my patient. And then I will go the specific investigation, dating scan is available or not, and and then I will go toward the management. Sir, is there any investigation finding given to me? जी बोलिए, पूछिए जो पूछना है, मैं बता दूं। Sir, blood group of my patient. आपको बताया है, she is A negative. Okay, sir. And sir, husband blood group. A is B positive. And sir, antibody titer, indirect womb test and the antibody titer. That has not been done. Okay, sir. And sir, dating scan, either the intrauterine pregnancy or the fetal viability. Well, she is 12 weeks pregnant, fetus is 12 weeks. Okay, sir. And then I will go toward the management. In the management, I will counsel the patient, and I will counsel the patient regarding the fetal-maternal risk. I will involve the multidisciplinary team, and I will give the symptomatic treatment to my patient, and I will also do the antibody indirect womb test and the antibody titer. And if the anti-D is not given, I will do the anti-D. And if there is if the bleeding is subside,
and I will monitor the patient conservatively and do the antibody titer 4 weekly from 28 weeks, 4 weekly till 28 weeks, and the 2 weekly till delivery. And I will also I will also give the anti-D prophylaxis according to the standard dose. If there any further episode, I will again do the Kelleher testing to check the amount of the fetal-maternal hemorrhage. And if there is no any complication, I will take the एक delivery at term. मिनट रुक जाओ। मैंने पिछली क्लास में एक केस प्रेजेंट किया था कि उसमें 4 बातें थी। आप ही थी उसमें प्रेजेंटर? यस सर, आई थिंक डायबिटिक और एंटी-डी का, एक नॉन अलाइव, दूसरा और एक डायबिटिक और एक एंटी-डी, और डायबिटीज, तीसरा ब्लड और एक ग्रुप, नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और चौथी थी फंडल हाइट ऑफ फंडस 20 वीक्स थी, हालांकि एमेनोरिया उसका 3 महीने का था। ये था उसमें स्ट्रॉन्ग मैसेज मैंने आपको ये दिया। आप चूंकि उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे डायबिटीज उठा के इसमें से आप उसी को लेते चले गए, बाकी 3 बातों को भूल ही गए उस दिन कि उसका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है, उसके चौथी प्रेगनेंसी है, नॉन अलाइव है, और एमेनोरिया 3 महीने का है, और हाइट ऑफ अंडर 20 वीक्स है। ये सारी बातें आप भूल गई थी, तो उसकी डायबिटीज पे आप फोकस कर रही। सर सेम मिस्टेक एग्जाम में हुई मेरे साथ। हाँ सर सेम मिस्टेक हुई सर कि पेशेंट की कंप्लेन में से एक पे हम फोकस करते हैं और बाकी भूल जाते हैं। हाँ, ये था ना। आजा कुड़िए वापस आ गए हम। ठीक है, आज के जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री है 24 ईयर ओल्ड, प्राइमरी ग्रेविडा, 12 वीक्स, आपके पास ब्लीडिंग के साथ आई है ना? यही बोला था ना मैंने? यस सर। और फिर ब्लड ग्रुप उसका नेगेटिव भी कर दिया मैंने। अब आप मुझे ये बताइए पिछले केस की डिस्कशन के साथ कि इसमें क्या प्रॉब्लम? एक तो ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव मैंने बताया आपको, दूसरा क्या है? सर 12 वीक्स और पीवी ब्लीडिंग। हाँ, ब्लीडिंग आपने उस पर मोहतरमा गौर ही नहीं फरमाया। तो she could well be a case of inevitable abortion, incomplete abortion, complete abortion. उस पे तो थोड़ा सा जोर दिया होता आपने। उस पेशेंट को नेगेटिव है, वो तो पता नहीं बच्चे पे असर होगा नहीं होगा, उसको तो अभी फौरी अपनी प्रेगनेंसी की फिक्र है कि वो ठीक चलती भी है कि नहीं चलती। तो 2-3 फिक्रे आपने उसके बोलने थे। आपने पेन का पूछा जरूर, लफ्ज कॉलिकी पेन नहीं आपने इस्तेमाल किया। इज शी हैविंग कॉलिकी पेन? आपने कहा कहाँ पे है पेन, थोड़ा सा पूछा। द वर्ड यू डिड नॉट यूज कॉलिकी पेन, क्योंकि ओके सर। अबॉर्शन होती है तो उसमें कॉलिकी पेन होती है। फिर उसके बाद फौरी आपने मैनेजमेंट में फौरी बोलना था, पहले उसकी प्रेगनेंसी तो कंफर्म करो ना कि ठीक है, वो थ्रेटन्ड अबॉर्शन है और चल रही है, चलेगी। आपने तो ये प्रिज्यूम करके कि शी इज अ केस ऑफ थ्रेटन्ड अबॉर्शन, उसका जिक्र ही ना किया क्या करना क्या नहीं करना, और चल दी आप ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव पे।
सर अगर उस पे आपने स्कैन दिया था तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था ना, फीटल वायबिलिटी पॉजिटिव थी, तो फिर मैं इसको इसलिए लेके चली थी सर। तो अब आज के केस में प्राइमरी ग्रेविडेट 12 वीक्स पे आती है और उसको ब्लीडिंग है। पहला आपका कंसर्न तो उस वक्त इमीडिएट डायग्नोसिस इज व्हाट टाइप ऑफ मिसकैरेज इज दिस, इज इट थ्रेटेड, इज इट इनएविटेबल, इज इट कंप्लीट, इनकम्प्लीट, क्या है? ये अल्फाज नहीं बोले आपने, यू जस्ट प्रिज्यूम्ड, जो इम्तिहान में रॉन्ग होता है ये आपकी प्रिजम्पशन, यू प्रिज्यूम्ड कि उसकी ब्लीडिंग तो सेटल हो गई है, और वो फिर बस आगे हम चल पड़े। फिर ए नेगेटिव इज द प्रॉब्लम। सारा आपने 7 मिनट ए नेगेटिव पे बड़े ठीक ठीक गुजारे, सब बातें ठीक की, फिर भी क्यों नहीं पास? ये है। तो आप सब इस बात पे आज से मुझसे मैसेज ले जाए, गौर करें कि आपने 2-4 सेकंड what are the important features in the history or data given to you. In this case, data जो आपको दिया गया है, प्राइमरी ग्रेविडा 12 वीक्स, ब्लीडिंग और ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव। अब ए नेगेटिव सुन के हम फौरन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द RH इनकम्पैटिबिलिटी लाइन। जो आपके पिछले 2 कैंडिडेट्स ने भी सही कहा, आपने भी सही किया, ऐसा ना करें, तभी आप थोड़ा सा डीरेल हो जाते हैं। एंड जब 7 मिनट पूरे हो जाते तो एग्जामिनर आपको कहता कि वो आपने वो जो उसकी ब्लीडिंग थी 12 वीक्स पे, उस पे नहीं कुछ कमेंट किया, आराम से आपकी हवा निकल जाती है। सो प्लीज जो डेटा दिया जाए उसमें से जो भी प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करो, और फिर दोनों तीनों चारों जो जितने भी प्रॉब्लम निकले उनके मतलब कहो जी कि इन दिस केस द प्रॉब्लम इज शी इज हैविंग ब्लीडिंग एट 12 वीक्स, so some kind of miscarriage and blood group A negative। बस आप यहीं पे इस लाइन लेने पे ही पास हो जाएंगे, आगे कुछ भी नहीं कहा आपने। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपने वो मिस किया, तो इसीलिए मैंने जानबूझ के ये थोड़ी सी एक किंक डाली हिस्ट्री में कि आप उस पर गौर करती हैं कि नहीं करती। आपने नहीं किया। चलो Hello, Assalamu alaikum, sir. Sir, जी। in such type of cases, first we have to address the presenting complaint कि patient हाँ किस मसले के साथ आई है, उसके बाद फिर हम जनरल हिस्ट्री पर जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, जी सर। बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पे उसकी कंप्लेंट तो थी ब्लीडिंग के साथ आई है 12 वीक्स के, उस पर आपने पेन पूछी, आपने सर्विक्स की डायटेशन या एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे सवाल कुछ भी नहीं पूछा ना। आप तो चल दी कि वो जैसे ब्लीडिंग तो सेटल हो गई है, बस अब ए नेगेटिव इज द प्रॉब्लम। उसके सारे बातें इन्होंने सही की, और बाहर निकल के बंदा कहता है उस स्टेशन पे मैंने सब कुछ सही तो बताया था। फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ जो आपने बोला कि आपने उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स या जो डेटा, मैं तो सिर्फ कंप्लेंट पे ना करें, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, और जैसे ए नेगेटिव इंफॉर्मेशन दी गई है, पेशेंट ने तो नहीं बताया आपको, तो वो जो भी दी गई है डेटा या इंफॉर्मेशन, वो सारे को हाईलाइट करें कि इन दिस पेशेंट शी इज अ प्राइमरी ग्रेविडा 12 वीक्स ब्लीडिंग एंड ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव। बस आपने इतने ही अल्फाज बोले तो आप पास हो पहले मिनट में, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि थ्रेटन, अगर वो ब्लीडिंग की टाइप आप निकालेंगे थ्रेटन वगैरह कि आपको उसकी मैनेजमेंट आती है। ब्लीडिंग अब 12 वीक्स पे ब्लीडिंग के साथ आए, किसको मिस मैनेजमेंट नहीं आती उसकी? आपने 1000 केस देखा हुआ। चलें नेक्स्ट।
थैंक यू नेक्स्ट सर। एक्सक्यूज मी सर, सर जी एक क्वेश्चन है। जैसे कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग हो रही है, इसको RH नेगेटिव है, तो इसको हम एंटी-डी लगाएंगे, जी मतलब इसको? जी, बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम चल, सर। आगे है पुलवाशा। अस्सलाम वालेकुम सर। पुलवाशा आप कहाँ से, हैदराबाद से के पेशावर से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं डॉक्टर जैनब बात कर रही हूँ, आपके पास केस प्रेजेंट करती थी। सर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है। ओह माशाल्लाह। मैंने सोचा कि मैं आपको थैंक्स कहूँ, और सर आप लोगों की बहुत सारी मेहरबानी। आपने हमें बहुत सारा मतलब ट्रैक दिया, और इसकी वजह से ही हमने एग्जाम पास किया। थैंक यू सो मच सर। नहीं, आप अपनी मेहनत से पास की, हम तो वन से वीक से कितना सर मैं इनको। जी सर, मैं सबको कहना चाहूंगी कि आपके लेक्चर सुने और बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। आपका ग्रुप जो है वो बहुत अच्छा ट्रेंड करता है, और एग्जाम के लिए ये मस्ट ग्रुप है। सब इसको जो है ना वो ज्वाइन करें। हाँ, आप अपने दोस्त जो आपकी है साथी, उनसे यही बात कही है, मुझे तो खुशी होगी अगर वो ज्वाइन करें। जी जी सर। सर थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। थैंक यू जैनब, थैंक यू। वेलकम सर सर। पुलवाशा, आप हो लाइन पे? हेलो हेलो भैया, आपने वॉलंटियर किया था, पुलवाशा इमरान को नाम दिया था। अरे आपको अगर मेरी? वो नहीं है तो फिर कोई और आ जाए। हेलो सर मैं नहीं, आ गई? जी जी नहीं सर, नहीं आवाज सर, आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है। ओके सर। अच्छा, आप कहाँ से बोल रही? सर मैं हैदराबाद से। मैं तो आपको फ्रंटियर से सुनूंगा, KPK। सॉरी सर। चलो, आपके जो पेरेंट्स हैं वो फ्रंट नहीं वहाँ सर, KPK से? नहीं नहीं सर, नहीं सर नहीं, हम माइग्रेटेड हैं, तो हम मैं बेसिकली सादिकाबाद से हूँ, और मैंने ट्रेनिंग अपनी हैदराबाद से की है, MBBS भी हैदराबाद से। और फिर तो आप अब हैदराबादी हो गए। जी सर, चलो, अभी भी हैदराबाद में ही हूँ। हाँ चलो, अल्लाह जी, शुरू। जी सर। The patient age 30 year, gravid 2 para 1, जी सर। baby is B positive. ओके सर। He comes to you at 10 weeks and her blood group is O negative and indirect womb test is positive. मैं दोहरा दूं? सर मैं दोहराती हूँ, 1 मिनट। 30 years old, ग्रेविडा 2 पैरा 1, बेबी बेबी का सर ब्लड ग्रुप बताया आपने पॉजिटिव? B positive, yes. बेबी इज बी पॉजिटिव। Hmm. ओके सर। एंड 10 वीक्स पर आई है, O नेगेटिव है मदर, और इनडायरेक्ट होम टेस्ट पॉजिटिव है। Very good. At 10 weeks. This is the information. चलिए, ओके सर। टाइम कर लेते हैं। और First of all, after the mutual introduction with my patient and confirming the details given to me, I would like to inquire about her last menstrual period and its regularity, and I will calculate the estimated date of delivery accordingly. And I will also inquire about her last baby born. Then I will proceed with her gestation age, pregnancy history. First of all, I will inquire about how she conceived and did she booked herself, and is there any complaint up till so far or any history of blood transfusion. So then I will move on to the her past ops history, as she is para 1. So I would like to inquire about the previous baby's gestation age of delivery and mode of delivery, and baby's blood group, and any history of NTD given to her in the previous baby, and antenatally or after the delivery, and any antenatal, intrapartum or postpartum complication. And sir, then I would inquire about her gynae history, medical history, and surgical history, any allergy history,
and drug history. Then I will proceed to the examination. And for first of all, I will check her height and weight to calculate her BMI, her vitals, her subvitals, anemia, jaundice, pallor, and then I will do her chest examination, and then proceed to the per abdominal examination. Per abdominal examination, I will check her. I will check her abdomen for any scar mark and any scar mark, and then I will proceed with the investigations. So as my patient is O negative and her baby's blood group is also B positive and indirect home test is positive, so I would like to know about the titers. Besides this, I will go for the baseline investigations, CBC, urine DR, RBC, and virology status. Sir, my further management would depend upon the antibody titer. Good. Sir, apart from this, I will check if she has any dating scan up till so far or not. If it is not done, then I will go for it to check for the fetal viability, number of fetuses. Sir, then my further management would depend upon the comb test. So, depending upon the titers, if the titers are less than 4 international unit per ml, then I will reassure my patient that the chances of sensitization is low, and further I will tell her about the fetal and maternal implications in this pregnancy, and I will also give her antenatal prophylaxis at 28 and 34 weeks, and I will do her titers. I will repeat her titers 2 weekly from 20 weeks till the 28 weeks, and then 2 weekly onwards till 38 weeks. So, if apart from this, I will also monitor the baby for the signs of anemia, and for the signs of anemia and Leica volume, and check for the baby's growth. If everything goes well, then I will take the pregnancy to the completed 38 weeks, and at 38 weeks, I will check for her Bishop score, and depending upon her previous mode of delivery, I will decide her mode of delivery. So during delivery, I will be in liaison with the multidisciplinary team, including the hematologist and neonatologist and me, obstetrician, myself. I will be vigilant. I will be monitoring vigilantly my patient and the baby. I will do continuous fetal monitoring. I will make sure that the a neonatologist is present to receive the baby, and so during delivery I will take the minimal handling of the placenta, and actively manage the third stage of labor, and at delivery I will take the baby's cord samples for hemoglobin, blood group, the direct Coombs test, and bilirubin, and then I will also give my patients prophylaxis anti-D after the delivery within 72 hours. Sir, apart from this, I will counsel my patient about the breastfeeding, and discuss with her about the future implications, and counsel her about the contraception. आप तो बुरी तरह फेल हो. No scope, no chance, none whatsoever. मैं अगर आपका एग्जामिनर हूँ, मैं कहूँगा अगली दफा भी ना हो. तुम्हारी अगले 4-6 महीने में तैयारी ठीक नहीं होगी, साल बाद. कोई है जो मेरे इस कमेंट पे आगे बढ़ाए या बोले? मैंने इतना हार्श डिसीजन क्यों लिया है? अस्सलाम वालेकुम सर. जी, आप कल क्यों बोलिए कि मैंने इन्होंने एंटी-डी टाइटर पॉजिटिव था, फिर भी इन्होंने कहा कि वो प्रोफाइलैक्सिस देंगी. क्या ये हंसने वाली बात नहीं है क्या? यस सर. जी सर. है बाबा, ये जब हम कहते हैं एंटी डी, व्हाट डज दैट मीन? सर सेंसिटाइज हो गई है. तो एंटी डी उसको देते हैं जिसकी एंटीबॉडी नहीं है. यस सर.
ताकि उसमें एंटीबॉडीज ना बने। जिसमें बन गई हो ऑलरेडी, मैंने तो आपको ऑलरेडी कहा कि इनडायरेक्ट टेस्ट पॉजिटिव है, उसमें एंटीबॉडीज है, उसको आप सर इसका एमसीए डॉपलर करवाना था मुझे हैं डायरेक्ट, एमसीए डॉपलर की तरफ वो जाना था। डॉक्टर, ये पहली ग्रॉस मिस्टेक ये है, आप सब चैप्टर खोल के बोलते जाते हैं, लेकिन इस वो तो सही बोलो ना कि तो बाबा इसमें हम कॉम्प्लिकेशन के लिए मॉनिटर करना। जिस पेशेंट के एंटीबॉडीज मौजूद हों उनको किसी स्टेज पे भी एंटी डी नहीं दिया जाता, सिर्फ मॉनिटर किया जाता है एंटीबॉडीज का टीटर कितना बढ़ रहा है। और दूसरे और आपने हस्बैंड का ब्लड ग्रुप बोला ही नहीं, एज इफ दैट इज अनइम्पोर्टेंट। ये दो ग्रॉस बेसिक मिस्टेक्स की है आपने, यस सर। जो किताब से गलत है, प्रेजेंटेशन तो बाद में आती है। इसका मतलब आपका नॉलेज जो है किताब से कमजोर है। आप कम से कम जो थ्योरी पढ़ के आई हैं, टेक्स्ट पढ़ के आई हैं, वो तो सही बोले ना। आज सर का इस पेशेंट पहला मैसेज कि वो पेशेंट जो ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है, उसके एंटीबॉडीज मौजूद हैं, वो एंटी डी टीका तो बाहर हो गया, उसका कोई रोल नहीं है। जी सर। क्योंकि वो टीका जो है एंटी डी, हाउ डज इट वर्क? सर सेंसिटाइजेशन से प्रिवेंट करता है। हाँ, वो जो फीटल सेल्स बॉडी में चले गए मदर के, उनको डिस्ट्रॉय करता है उनको बिफोर न्यूट्रलाइज दे कर। रीच जी सर। द टारगेट एरियाज, बिफोर दे रीच द टारगेट एरियाज। तो एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, हस्बैंड का आपने नाम ही ना लिया। बाबा ये पेशेंट है ओ नेगेटिव, बेबी अगर एक बी पॉजिटिव है, डज इट मीन के हस्बैंड के सारे बच्चे पॉजिटिव होंगे? अभी पिछले पेशेंट में डिस्कशन हुई है इसकी। जी सर। ये इज पॉसिबल कि उसका जीनोटाइपिंग कैपिटल डी और स्मॉल डी है, उसका मतलब 50% चांस है कि बच्चा पॉजिटिव होगा, 50% चांस है नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो इसको मसला कोई नहीं होगा। आपने बिल्कुल उसके पास से ना गुजरी। तो बाबा 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 जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उस पे गौर फरमाइए। जी सर। 5-10 सेकंड उस पे गौर फरमाइए। यहाँ पे बेबी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, और उसको RH नेगेटिव होने के साथ एंटीबॉडीज मौजूद है। इमीडिएटली आपका पहला ख्याल ये होना चाहिए कि पता करो कि सारे बच्चे पॉजिटिव होंगे। वो तब होंगे अगर आपको पता चल गया वो कैपिटल डी है जीनोटाइपिंग हस्बैंड का। फिर आप कह देंगे, पेशेंट को अनाउंस कर देंगे, ऑल योर बेबीज विल बी पॉजिटिव, हेंस ऑल ऑफ देम आर exposed to the antibodies which you have in your body. Yes sir. इसलिए they will all be at risk. इसलिए क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ योर प्रेगनेंसी। वो फिर आपकी बातें जो आपने कही जी। कि 2 हफ्ते फिर 4 हफ्ते, फिर उसको जरूरत पड़ी यहाँ पे जाना था, जो पिछली दफा किसी ने मेंशन किया कि जो बेबी है उसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, उसका डॉपलर करवाएंगे सेरिब्रल आर्टरी का, कि निमिक तो नहीं हो रहा, हाइड्रॉप्स तो नहीं बन रहा। इस तरह की बातें करनी थी आप। परवाशा, आई एम सॉरी, लेकिन तुम मेरे साथ वादा नो करोगे सर, आई नो। जी सर। नहीं कि तुमने अगली दफा भी प्रेजेंट करना है। यस सर। सर ये मेरी फर्स्ट एवर प्रेजेंटेशन है टू एनी मेंटोर। तो अच्छी बात होगी,
अच्छा, आई एडमायर योर करेज। पहली प्रेजेंटेशन ही मुश्किल होती है। मोस्ट जी ऑफ सर। योर सर शाई ऑफ मेरा दैट। फोकस वाकई हट गया, मैंने ना प्रेशर ले लिया बहुत। तो अब अगली दफा फिर करोगी, इमरान शफी को अपना नाम लिखवाओ। और जी सर। तो मेरा मैसेज आपको यह है कि जो डेटा दिया गया है 5 सेकंड के लिए उस पर गौर फरमाइए। यस सर। यहाँ डेटा था, टोटल डेटा तो था एज 30, ग्रेविड 2, पैरा 1, बेबी बी पॉजिटिव, mother is RH negative at 10 weeks with antibodies. So यहाँ डेटा इम्पोर्टेंट हो गया रिवर्स ऑर्डर में कि उसको एंटीबॉडीज भी हैं, वो RH नेगेटिव भी है, बेबी भी पॉजिटिव। ये 3 बातें आपको मैंने बताई। अब तीनों पे गौर ब्लीडिंग की हिस्ट्री को, पीवी ब्लीडिंग की भी तो हिस्ट्री लेनी थी 10 वीक्स पे। और वो पिछला पेशेंट था ना, यहाँ अगर नहीं दी गई हिस्ट्री ब्लीडिंग की तो लेट्स प्रिज्यूम के नहीं है, लेट्स प्रिज्यूम के ठीक है सर। नहीं, और आप कह दें तो कोई बात नहीं, अच्छा उसका प्लस पॉइंट है, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी तो ये डेटा तीनों जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको डायलेट करना, इसको डायलेट करना। चलें नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप हैं बख्तावर जी जी सर। लाड़काना से? जी सर, लाड़काना से हूँ। सर केजरीवाल ने जीनो कहा तुम भुट्टो हो, तुमने कहा मैं नहीं भुट्टो। नो सर, भुट्टो नहीं हूँ मैं। चलो लाड़ सर वो क्वेश्चन पूछना था कि जीनोटाइपिंग की फैसिलिटी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है? हम और मतलब ये है नहीं है, आपने बोलना जरूर है, उससे आपका दिमाग खुलता है कि कैपिटल डी स्मॉल डी क्या मतलब होगा उसका, ये क्या पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि जब हम RH इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि अगर हस्बैंड पॉजिटिव है और माँ जो है नेगेटिव है, ऑल बेबीज विल बी अफेक्टेड। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी जीनोटाइपिंग पे भी इंसार है। तीसरा, इवन इफ ही इज पॉजिटिव डी क्योंकि 100% चांस नहीं है कि ऑल बेबीज विल बी अफेक्टेड, 70% चांस है। ये छोटी बातों तक तो हम पहुंचते ही नहीं डिस्कशन में। सर एग्जामिनर हमसे पूछते हैं कि जीनोटाइपिंग आप कह तो रही हैं, तो क्या पाकिस्तान में होता है कि नहीं होता तो है एग्जामिनर? मेरे आपको सारे पाकिस्तान का इल्म होना जरूरी नहीं कि ये मैं हैदराबाद से हूँ वहां नहीं होता, बस। अच्छा जी सर, थैंक आप यू सर। सारे पाकिस्तान का ठेका तो नहीं लेना। वो कह दे कि हाँ कराची से आई है कि नहीं आखार में होता है या फलां जगह होता है, बाबा होता होगा, हमारे पास नहीं होता। जी सर। आपने अपना जवाब देना है, अब सारे पाकिस्तान का ठेका। सर एक्सक्यूज मी सर, जी प्लीज ये जरा बताइए RNTD बॉडीज का ये कब टर्मिनेट करना है और किस तरह मॉनिटरिंग करना है, पेरेंट्स का पेशेंट को क्या करना है? तो जी वो पहले 3 कैंडिडेट्स ने बड़ा अच्छा बताया कि एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंटीबॉडीज करेंगे। पहले तो पता करेंगे ना कि एंटीबॉडीज हैं कि नहीं है। तो लेट्स से कि एंटीबॉडीज हैं तो फिर उसका टीटर करेंगे और उसके कितनी स्पीड से वो बढ़ रहा है एट द बुकिंग कितना है, और फिर कितना वो बोला सबने कि अगर हाई डाइल्यूशन में होगा तो बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब इस प्रेगनेंसी में द बेबी इज लाइकली के पॉजिटिव है, वो मदर को सेंसिटाइज कर रहा है फर्दर फॉर इंक्रीज ऑफ। फिर आप उस एक सर्टेन लेवल के क्राइटेरिया रखे कि 1/250 पे या 14.5 से ज्यादा हो गया टीटर, तो फिर मैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन का सोचूंगी या उसको अर्ली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का सोचूंगी। ये हम वहां तक तो डिस्कशन में पहुंचे ही नहीं। चलो जी, अब बख्तावर तुम्हारा तो केस बहुत ही आसान है। आई होप यू मेक इट। एज 30,
she is B negative, gravida 3, para 2, 1 stillbirth. She comes to you after missing her period, 6 weeks amenorrhea. Her husband is A negative. हिस्ट्री दोहराऊं कि सुन लिया आपने? सर एक बार दोहरा लीजिए। Age 30, जी सर। she is B negative, यस सर। gravida 3, para 2, 1 stillbirth. जी सर। LMP 6 weeks ago. LMP 6 Just weeks. missed a period and she has come to you. जो कि एक तो उसकी stillbirth होगी. Yes sir. And you get her husband's blood group, वो A negative है. बोलिए. Yeah. First of all, I will after my mutual introduction and confirming the details that are given to me, then I will take the relevant focused investigation from my patient. I will ask her the I will माइक के पास मुंह करके बोलिए. I will ask her the I will ask her the LMP and surety of the gestational surety of the menstrual cycles regularity, and then I will ask her the details about her previous stillbirth, what was the gestational age at that time, and mode of delivery and time of delivery, and I will ask her the ask her the details about her previous pregnancy, in which whether she had done whether she had taken prophylaxis routine antenatal and postpartum prophylaxis or not, and I will ask her about the previous baby's blood group, whether she had checked or not, and then I will ask her about the then I will ask her about the complications in previous pregnancy, antenatal, postpartum, or intrapartum complications. And after that, I will ask her about the this pregnancy. I will ask her about the husband's blood group and genotyping. I will ask her whether she had checked her husband's genotyping, whether it is whether homozygous or heterozygous, and then I will ask her about the previous in this pregnancy any abdominal pain, any pervaginal bleeding, and I will ask her whether she had checked her titers in this pregnancy, and after that I will ask her about the routine other history, like I will ask her the family history and I will ask her about the surgical history and any socioeconomic history and any allergy to the drug. Then I will ask her about the general physical. I will check for the general physical examination, in which I will check vitals and subvitals. टाइम पूरा हो. कोई कमेंट करे जो सुन रहे हैं इस हिस्ट्री पे. इसका तो सर, है कि नेगेटिव हस्बैंड का नेगेटिव ब्लड बारी ग्रुप बारी मैं सबको चांस दूंगा. शाहीन सर क्या कह रही है? नेगेटिव है, पेशेंट बी नेगेटिव है और हस्बैंड ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है. सर इसमें हमने पहले ये पूछना है कि रेगुलरिटी ऑफ द साइकिल, कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वेदर फर्स्ट मैरिज ऑफ बोथ पार्टनर्स. चलिए आप चुप करें. और कोई? सर ये सर हस्बैंड ए नेगेटिव है, वाइफ भी नेगेटिव. हस्बैंड सर तो ए नॉर्मल नेगेटिव. प्रेगनेंसी लेके चलेंगे. हाँ हस्बैंड नेगेटिव है, हस्बैंड ए because this नेगेटिव. is important and हेलो अस्सलाम वालेकुम सर. जी बोलिए शाहीन.
सर इसमें हम पूछेंगे फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज क्योंकि स्टिल बर्थ डायबिटीज का पूछें, हाँ। और पर्सनल हिस्ट्री ऑफ और डायबिटीज इन हाई ब्लड प्रीवियस प्रेशर। प्रेगनेंसीज एंड रिगार्डिंग दिस very very good. Most of you have identified, लेकिन vaguely. OGTT सर नो scan टाइटल first मॉनिटरिंग। causes। इनका नादिया कुछ कहना चाहती है कि नायला क्या है? जी सर, OGTT इसका डेटिंग स्कैन होगा, उसमें OGTT और प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, एंटीपार्टम इंट्रापार्टम डेथ है, वेट ऑफ द बेबी, मोड ऑफ द डिलीवरी एंड एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन प्रीवियस प्रेगनेंसी, एनी कोमोर्बिडिटीज, वो पूछेंगे। सर क्या इसमें ये ब्लड ग्रुप तो नायला बोल दोनों रही ही नेगेटिव थे तो सर काफी बोला आप। सर उसमें पहले और बेबी का ब्लड, क्या बेबी का क्या उल्फत सर बोल? उसमें जो स्टिल बर्थ बेबी उसका बेबी का ब्लड ग्रुप क्या था और एंटीडी दी थी या नहीं दी थी? पहले तो ये दोनों पूछिए। तो नेगेटिव था ना वो सर, नेगेटिव है, तो बोथ आर नेगेटिव। उल्फत सर तुम्हारा बोथ आर वक्त नेगेटिव तो एंटी-डी क्यों देंगे? ठहर जाओ। ये उल्फत जो आखिर में बोली वो अपने आप को अब तुम बख्तावर की कैटेगरी में रखो। जब मैं बोलूंगा उल्फत उसी कैटेगरी में है जिसमें मैं बख्तावर को डालने वाला हूँ। बख्तावर क्या जी सर, सॉरी सर, मैं जो है ना, सॉरी अब बाद में तो जब घंटी बज गई फिर सॉरी होने का कोई तुक नहीं होता, कोई सर आप तुक बिल्कुल नहीं सही होता। कह रहे हैं, मुझसे बड़ी गलती हो गई है कि मैंने। सुन लीजिए, जी क्योंकि सर। आज हम RH इनकम्पैटिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं जी सर। और मैंने आपको बता दिया कि पेशेंट ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, बिल्कुल तो बिल्कुल सर। आपने अपना दिमाग बंद कर लिया। जी चाबी बिल्कुल आप दरिया सही में कह रहे हैं, छोड़ मेरा दी, दिमाग बंद। जी सर। चाबी को दरिया में फेंक दिया जी और जब तक आपको होश आया चाबी तो समंदर में चली गई। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया मुझसे। क्या ब्लंडर हुआ भला, बोलो। सर ये मैंने जो है ना होश से काम नहीं लिया, ब्लड ग्रुप वगैरह पहले सही से, मतलब मुझे स्टेटमेंट को देखना चाहिए था। जहाँ चूंकि हम RH इनकम्पैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं और जी पेशेंट का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव आ गया, अपने जी आप सर। दिमाग बंद कर लिया जी सर। कि आज जो भी बात होगी बी नेगेटिव का है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी की बात होगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारे अंदर जो है ना दिमाग में टॉपिक जब घुस जाता है तो बस उसी टॉपिक के पीछे पड़े रहते हैं। Whereas in this patient is B negative, husband is A negative, RH प्रॉब्लम ही नहीं है, RH प्रॉब्लम ही नहीं है। जी सर। उसको काट दो, एट बेस्ट सिर्फ ये कह दो कि इन केस उसके दूसरी शादी हो, इन केस उसको ट्रांसफ्यूजन लगा हो, इसलिए मैं एक दफा उसका इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करवा लूं एंटीबॉडी का। वो इफ दे आर लॉयल टू ईच अदर, वाइफ एंड हस्बैंड, वो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट मस्ट बी नेगेटिव, वो सेंसिटाइज हो ही नहीं सकती। जब हस्बैंड का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बीवी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो उसकी सेंसिटाइजेशन कहाँ से होनी है? जी बिल्कुल सही सर। अगर आपको शक है तो एक दफा उसका एंटीबॉडी टेस्ट कह के करें कि जी आई सर। विल डू एंटीबॉडी टेस्ट वंस टू इंश्योर देयर इज नो सेंसिटाइजेशन, फुल स्टॉप। ये एक फिक्रा कह के RH इज आउट, RH यस is सर। out in this case. The only thing which you have to discuss, stillbirth. Stillbirth. वो आप में से यस शाहीन ने मुझे आइडेंटिफाई, सर स्टिल बर्थ के मतलब काजेज रूल आउट करनी चाहिए थे यहाँ वो से। ये इसमें स्टोरी में सिर्फ स्टिल बर्थ इम्पोर्टेंट है जी बिल्कुल सही कि कह रहे वो हैं आप क्यों सर। हुई, कैसे हुई, वो फ्रेश स्टिल बर्थ थी, मैसेरेटेड स्टिल बर्थ थी, जी और बिल्कुल सर। क्या था क्या न। आप में से आज शाहीन ने डायबिटीज का नाम लिया और नायला ने भी लिया, ये दो लड़कियां, बाकी तुसी तो गुम हो गई। तो
कमाल करती हैं आप सब। बाबा कितनी दफा मैं दोहराऊं, जो डेटा दिया गया है उस पर गौर फरमाओ, गौर जी फरमाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं नेक्स्ट टाइम भी आपसे प्रेजेंट करूंगी इंशाल्लाह। जो डेटा दिया गया है उस पर गौर कीजिए। ये पेशेंट तो RH इनकम्पेटिबिलिटी बनता ही नहीं है। जी बिल्कुल सही। वाइफ बी नेगेटिव, हस्बैंड A नेगेटिव। जी बस सर। गल मुक। जी सर। सिर्फ ये कहना है कि just to ensure that there's been no sensitization of the patient, once I'll do her antibody test and that is likely to be negative. यस सर। अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब she was given either blood transfusion or she was married to somebody else previously. जी सर। और कोई वजह नहीं हो सकती। जी सर। तो RH तो एक फिक्रे में पार हो गया था इस केस में। जी बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। The only problem which you had to discuss was her stillbirth. उस पे पूछना था सारे सवाल कि वो आपको सब पता है कि उस प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, ड्यूरिंग लेबर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, जो स्टिलबर्थ थी वो फ्रेश थी कि मैसेरेटेड थी, उसका वजन कितना था, ऐरा था गहरा था। फिर उसकी कॉजेज में मोटी मोटी कॉजेज बोलो, जैसे तो उन्होंने बोला डायबिटीज एक बोली। जी सर। एनोमलीज नंबर 1 टॉप पे आता है। कोई एनोमली स्किन वगैरह कोई वो सारा उस पे गौर करना था। जी जी बिल्कुल सर। सो आज का मैंने ये जानबूझ के ये केस डाला है कि RH बस RH शुरू हो गया जो किताब में लिखा हुआ। जी सर, गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई। बड़ी गलती है। हाँ बहुत बड़ी गलती है सर। मतलब आप खुद ही सोचिए ना कि ये RH का केस ही नहीं था, आपने सारा वाइवा RH पे बोल दिया। के पे दिया, तो आप पास कैसे होते? बिल्कुल सर। सो जो डेटा दिया गया है उस पर गौर फरमाइए, गौर फरमाइए, गौर फरमाइए। मैंने तो एक केस और भी बनाया हुआ है। मैं करती हूँ प्रेजेंट। सर करवा लें प्लीज। सर मैं करती हूँ। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। सर अगर फॉर सपोज रूटीन एंटीनेटल प्रोफाइलेक्सिस जो है, जो एंटीनेटल प्रोफाइलेक्सिस है वो 28 और 34 वीक पे, या जो मेंशन्ड जो गेस्टेशनल वीक्स जो बताए गए हैं उन पे अगर पेशेंट नहीं आई या पेशेंट मिस हो गई, पेशेंट किसी वजह से, किसी रीजन की वजह से नहीं आ पाई, फिर 36 पे आई या 38 पे आ गई जी सर, फिर उनको क्या हम प्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं? मतलब एंटीनेटल। आपका मतलब वो पहली दफा आपके पास 36 वीक्स पे आई? जी 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 बिल्कुल सर, 37 पे या 30 तो किसी और you वीक had पे। no opportunity of giving a prophylaxis at 28 and 34 weeks. जी सर। तो अगर आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं तो इस तरह से कहेंगे। जी सर। In this case, the right time for giving prophylactic anti-D is past. जी सर। If she does not get any anti-D during pregnancy and gets only after her delivery within 72 hours, yes sir, then that prophylaxis possibly will protect her roughly 95%, 96%, not 100%. मतलब एंटीनेटल नहीं देंगे सर? हाँ, तो ये बताना ये है कि अब देने का उसको कोई खास फायदा नहीं होगा। अच्छा। अब डिलीवरी के बाद देंगे within 72 hours. अच्छा अच्छा। Because it is expensive injection and the patient will not get maximum benefit out of it. अच्छा। ये चले, ये पांचवा केस कर लें। सर एक और क्वेश्चन भी है। जी बोले, सवाल पूछिए।
सर हम फॉर सपोज जो सर ब्लड ग्रुपिंग करवाते हैं और RH टाइपिंग और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग हम बुकिंग पे भी करवाते हैं और सर 28 वीक पे भी हर पेशेंट का हर प्रेगनेंसी में करवाते हैं। तो सर अगर क्या ब्लड पढ़ रही ग्रुप हो तो आप बार 2 बार, हफ्ते बाद करो। जी सर, ब्लड और ग्रुप अगर बार वो बार करवाना? एक जी सर्टेन सर। लेवल से ऊपर है तो इम्तिहान में वही बात अभी किसी ने पूछी कि हमारे पास नहीं होता तो हम क्या कहें, तो जीनोटाइपिंग आपने कहना फिर भी है। तो इसी तरह कहिए कि अगर वो टीचर इज इंक्रीजिंग रैपिडली एंड 1 in 250 हो गया है या इससे भी ज्यादा हो गया है, then the baby needs intrauterine blood transfusion of O negative blood. यस सर। वो हर 2 हफ्ते बाद दिया जाता है। उसका सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि कॉर्ड की प्लेसेंटल अटैचमेंट जहाँ होती है वहाँ अल्ट्रासाउंड गाइडेड जाके हम देंगे, क्योंकि वो कॉर्ड का फिक्स्ड पॉइंट है, प्लेसेंटा इज फिक्स्ड वहाँ पे। बस इतना सा पता होना चाहिए, एंड दिस इज रिपीटेड एवरी 2 weeks. अच्छा सर। और सेरेब्रॉटरी की उसका डॉपलर करते जाएंगे, दैट विल शो हाउ अनेमिक द बेबी इज। इफ नीड बी इसको 2 हफ्ते बाद रिपीट करेंगे, और एज सुन एज द बेबी इज वायबल हम उसको सिजेरियन सेक्शन करके डिलीवर करेंगे, और निकलते ही उसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन देंगे। ये एक फिक्रा लंबा सा बोलना है, मैं दोहरा देता हूँ। इफ the titer of the antibodies is increasing and the titer reaches a high dilution level, then we'll consider intrauterine transfusion. कौन सा ब्लड ग्रुप? O नेगेटिव। और वो हर 2 हफ्ते बाद रिपीट करेंगे, साथ डॉपलर ऑफ द बेबी टू फाइंड आउट सेवेरिटी ऑफ एनीमिया। और जब बेबी वायबल हो जाएगा उसको डिलीवर करके एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे। आसान सिंपल बना के इतना सा पेश कीजिए। और चूंकि उसके एंटीबॉडीज ऑलरेडी है, उसको एंटीडी देने का फायदा कोई नहीं इस पेशेंट को। चलो अब हमने 10-15 मिनट इसी में लगा लिए। सर हाँ जी सर, फीटो मैटरनल हेमरेज की जो टेस्टिंग होती है आफ्टर गिविंग द एंटीडी इंजेक्शन पेशेंट को, सर वो फिर जो है एंटीडी इंजेक्शन के बाद ये फीटो मैटरनल हेमरेज टेस्टिंग होती है या एंटीडी देने से पहले ये करवाते हैं? एंटीडी देने का फीटो मैटरनल ब्लीडिंग के साथ कोई तल्लक नहीं। आप दे रहे हैं उसका प्रोफाइलैक्सिस के लिए कि जी कोई ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग पर वजाइनम, पर वजाइनम कोई ब्लीडिंग हो पर वजाइनम, थ्रेटेंड अबॉर्शन हो गई, फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो गई, फिर आगे APH हो गया, फिर जो भी पर वजाइनल ब्लीडिंग हो, तो ये कंसील्ड एब्रप्ट शो प्लेसेंटी तो बहुत अनकॉमन, टोटली कंसील्ड। तो लेकिन आप कहेंगे जब भी एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगी हम उसको एज ए प्रोफाइलैक्सिस एंटीडी देंगे, इवन इन अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी लाइक थ्रेटेंड अबॉर्शन और कोई उस तरह की केस। जी सर फिर फीटल सेल्स जो हैं क्लियर नहीं हो जाएंगे जब फीटो मैटरनल हेमरेज बाद में करेंगे एंटीडी देने के बाद? फिर हमें जो है ना रिजल्ट में सर कोई वो तो नहीं होगा? नहीं, वो ऐसा है कि सेल्स अगर डिसअपीयर हो जाएंगे तो अच्छी बात है ना। वो तो अच्छा सर। as soon as bleeding takes place you give injection। या 72 आवर्स का डिले नहीं है, डिले तो है सिर्फ डिलीवरी के बाद विद इन 72 आवर्स। ये नहीं कहा जरूर 72 आवर्स के बाद लगाना है, विद इन 72 आवर्स, as soon as जी सर, विद इन 72 आवर्स है, as soon as possible। चले फिर आप आज 5वां केस नहीं करते, ऑलरेडी नियरली 10 हो गए। अगला सब्जेक्ट सर एक बात है सर, 72 आवर्स सर जी फैजा क्या कह रही है?
सर अगर सर 72 आवर्स किसी पेशेंट को गुजर जाते हैं, मतलब मिस हो हाँ, जाती है डोज, फिर उसका तो एडवांटेज 10 मैक्सिमम days. नहीं 10 होगा, days. क्योंकि फिर वो सेंसिटाइजेशन शुरू हो गई है। फिर दे बेशक, लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो पूरा नहीं होगा। ये यानी बोलना। सर अगली प्रेगनेंसी में फिर टाइटर ही करवाए ना, एंटीबॉडी हाँ, फिर टाइटर ही टाइटर करवाए। कराना बड़ा जरूरी है। इवन इफ एंटीडी इज गिवन पहली बुकिंग पे, पहली विजिट पे उसका एंटीबॉडी टीटर करवाएंगे। सर आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ। सर मैं भी सर चलो जी, मैं भी सर मैं सर भी नेक्स्ट टॉपिक क्रोनिक पेल्विक पेन आज पढ़ा दें की प्लीज। तरह फेल किया फिर भी। सर Ops complete नेक्स्ट करवाएं सर। टॉपिक जो है वो क्रोनिक पेल्विक पेन पढ़ा दें सर। क्रॉनिक पेल्विक पेन, चलो कर लेते। जी सर। हाइपरटेंशन होना चाहिए। साहिबा हाइपरटेंशन फिर उससे अगली दफा कर लेंगे। ठीक जी है। सर हम अपना नाम भी लिख लें थैंक यू प्रेजेंटर्स सर। का। सर लेप्रोस्कोपी होना चाहिए। सर एग्जाम से अच्छा, रिलेटेड कोई आप पहले बोलती है। सर मैंने अब क्रॉनिक कंट्रासेप्शन भी पेल्विक पेन लिख लिया है, उसके बाद ब्लड प्रेशर, फिर चलो लेप्रोस्कोपी कर ले। ये सर सारे सर कंट्रासेप्शन भी क्रोनिक सर पेल्विक पेन में लेप्रोस्कोपी तो आएगा ना? सर इमरजेंसी उसके साथ ही करवा कॉन्ट्रासेप्शन। ले। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन सर कंट्रासेप्शन सर। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन स्पेशली सर। अच्छा, आप नहीं आती। Sir, I want to have your कल lecture कल on. कंट्रासेप्शन का एक सेमिनार था, मैंने तो जाके, आई एम ओल्ड मैन, मुझे तुम लोगों को डांट डांट के आदत पड़ गई डांट, मैंने वहाँ ऑर्गेनाइजर तक डांट दिया कि कंट्रासेप्शन की बात करनी है तो छोटे गांव में इसके जाके नाम करो, छोटे शहर में जाके करो, लाहौर के पीसी में कर रहे हो, ये कोई बात है। चलो जी, मैंने सर 3 हमारा नाम टॉपिक, लिख लिया। क्रॉनिक पेल्विक पेन, ब्लड प्रेशर और लेप्रोस्कोपी, ये 3-4 लिख लिए। जी सर अगली मेरा दफा नाम लिख क्रॉनिक लिया। पेल्विक पेन जिन्होंने प्रेजेंट करना है अभी से इमरान शफी को नाम लिखवा दो। ठीक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. चलो, तो दिल खोल के थैंक यू तो किया करो, आदत डालो थैंक यू कहने की। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच यू सर, सर। थैंक यू सो मच सर। सर आप तो दुआई करते हैं इतनी। नहीं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आदत बनाए आप, थोड़ा सा भी कोई गिलास पानी का ला के थैंक यू सर। say thank you. जज़ाकल्लाह सर। Even if your husband does this, say thank you. थैंक यू सर। इससे अच्छी आदत बनती है, सॉफ्टनिंग इफेक्ट है थैंक यू उनका। सर। थैंक यू। चलो, थैंक यू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।